this is a new video, and in this video I'm going to start with a new chapter. The name of the chapter is what? Laws of motion. Okay, so we are starting with physics, and the name of the chapter is what? Laws of motion. Now, before starting the laws of motion, ठीक है, अभी laws of motion, there are three laws of motion, ठीक है, जो न्यूटन्स ने क्या किया था, डिस्कवर किया था. Before starting the laws of motion, obviously we need to study some basics, ठीक है, because वो law of motion के साथ related है, so उसके basics हम लोग को सीखने हैं, ठीक है. So what is motion? हम लोग ने chapter 2 में पढ़ा what is motion. Motion is what basically anything whenever a force is applied, ठीक है, कोई भी body motion में कभी आएगा whenever any kind of force is applied. Now if I define a force, ठीक है, अगर मैं force को proper way में define करता हूँ कि what is force in a simple language, not a physics language, a simple language कि force है क्या, ठीक है. So let's say if I talk about कि ये box है, ठीक है, ये box के ऊपर two ways में मैं force apply कर सकता हूँ. Either I can apply by pushing and either I can apply pulling. Yes or no? So what is force? Force is nothing but a push or a pull. Okay, so whenever you push or whenever you pull, that means you are applying the force on that particular body. And because of that force applied, there will be some changes in that particular body. Let's say if I talk about ये box है, ठीक है, ये box है, box के ऊपर either I am what applying a force which is a pushing, or either I'm applying what a force which is pulling. So push and pull is nothing but a force applied. So now because of the force applied, ठीक है, body will change its motion, ठीक है, it will changes what basically let's say state, ठीक है, there are two types of state. We know that state of rest and state of motion. जो second chapter में already पढ़ा rest and motion, ठीक है. So whenever a force is applied on a body, ठीक है, so either it will changes what state of rest or state of motion. मतलब state of rest में है तो motion में आएगा, state of motion में है तो rest पे आएगा, ठीक है. So we'll discuss about all these things, ठीक है. So now I hope you are clear with the what a layman definition. What is force? Force is nothing but a push or a pull, ठीक है, applied on the body. Now there are two effects, ठीक है, because of what force, अगर मैं force apply कर रहा हूँ तो there are two effects, कि दो इफेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कि फोर्स अप्लाई होता है तो क्या क्या होता है. लेट्स सी, ठीक है ना. दिस इज बेसिकली अ पार्ट ए ऑफ योर लॉ ऑफ मोशन. तो ये जो पार्ट ए है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ व्हाट थ्योरी पार्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट मच ऑन द बोर्ड. आई विल जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल्स एंड लेमन एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. तुम लोग इजीली अच्छे से तुम लोग को क्या करेगा वो कंसेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है. सो आई विल गिव यू ऑल द एग्जांपल्स, डोंट वरी. सो व्हाट दे हैव रिटन इज there are main two effects because of the force applied, ठीक है. There are two effects. Now first effect already we have discussed, like unknowingly we have discussed. जैसे ये बोला, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, if a box, ठीक है, if on a box a force is applied, push or pull, ठीक है. Let's say यहाँ पे एक box है, मैंने उसको push किया और either pull कर रहा हूँ. So what is happening? Guys tell me what is happening? We have discussed right now 5 minutes back. क्या क्या हो रहा है? Basically that box is changing its state. Right now this box is in what? Rest. If a box is in rest, वो motion में आ रहा है अगर मैंने force apply किया. Yes or no? जैसे if I give one more example, cycle, ठीक है, साइकिल वहाँ पे क्या साइकिल अपने let's say गराज में पड़ा हुआ है, ठीक है. मैंने साइकिल को बाहर निकाला, मैं उसके ऊपर बैठा and I have started pedaling, ठीक है. मैं पैडल्स क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. That means my legs are applying force on that particular pedal. जैसे वो force पैडल पे अप्लाई कर रहा हूँ, साइकिल is going to move forward. That means cycle was on rest, ठीक है. Now by applying a force it is in motion. So that means by applying a force, by applying the external force, body will come in what? Motion if it is in rest. I'll give you one more example, reverse of that. Let's say we are playing what? A cricket or let's say football or anything, ठीक है. Whenever there is a goalkeeper or let's say a wicket keeper, ठीक है. जैसे क्रिकेट में अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, ऐसे बॉल डाला, so wicket keeper क्या करता है? He is what? Just catching a ball. Yes or no? मोमेंटम लेके पीछे ऐसे लेके कैच कर रहा है बॉल को. That means he is also applying some force. समझा? जैसे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, yes or no? So बॉडी क्या हो रहा है? बॉडी is coming to a rest. Getting my point? I'll give you one more example. ठीक है? Let's say there is something called as frictional force. You guys know what is frictional, right? Always frictional force is opposite to the what? External force applied. So ये diagram को थोड़ा सा modify करता हूँ. Let's say let's do one thing. I'll just modify this diagram. I'll just take a duster. Okay, I have taken a duster. So what I'll do, this diagram is there. Now
ये बॉक्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स। नाउ द बॉक्स इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, फ्लोर है या टेबल है, व्हाटएवर इट इज, नीचे फ्लोर, सो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है। क्या, कौन सा, ओके मैं F के जगह पे स्मॉल f लिख लेता हूँ। स्मॉल f इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, कैपिटल F इज योर what external force which we have applied. So because of the frictional force, body is coming to a rest. जैसे अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया क्रिकेट और उसका, लेट्स टेक वन सिमिलर एग्जांपल कि मेरे हाथ में बॉल है, मैंने उसको रोल डाउन किया, ठीक है। आफ्टर रोलिंग डाउन, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली का लाइफ टाइम तक चलता रहेगा क्या, रोल होता रहेगा, नहीं, इट विल कम टू अ रेस्ट। Why? Because उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, and because of the frictional force which is in opposite direction to the external force, body is coming to a rest. So यहाँ पे conclusion क्या हुआ कि yes, भले frictional force है, but that is a kind of force only. If we are applying a force, what if we are applying a force? So because of force, frictional force, body is coming to rest. So what we have learned, what is the first effect? Yes or no? What is the first effect? Is that whenever force is applied, first, whenever the force is applied, body changes its state of motion. Yes or no? अगर वो body rest पे है, rest से क्या हो जाएगा, motion में. If body is in motion, motion से क्या आ जाएगा वो, rest में. So this both the things are possible by applying a force. So this is the main effect. ठीक है, one of the main effect. There are two effects, obviously. Okay, so which examples they have given? What exactly they have? It can change the state of rest or the motion. मतलब वही है, changes the state of what, motion or rest. Rest से motion में आ गया, motion से rest में आ गया. Both are possible. Body rest में है, force apply करने से motion में आएगा. अगर body motion में है, force apply करने से rest में आ जाएगा. Yes or no? So this is the same thing. Now they are also given what few examples. ठीक है, force due to gravity. Or let's say they have given also bicycle का example and everything. So they have given few examples, right? They have given one more example by brake apply. अभी brake apply करना मतलब क्या है, वापस body rest पे आ रहा है. So what is brake? Brake is again a frictional force only, right? जब तुम लोग brake apply करते हो तो तुम लोग क्या करो, कार के अंदर friction create कर रहे हो so that तुम्हारा जो कार है, जो vehicle है, वो rest पे आएगा. That is your frictional force only, right? So applying a brake, ठीक है, that is a force. Applying a force only, that is equal to applying a force. When you apply a brake, that is equal to applying a force. So if you are applying a force, body, the vehicle was in motion and it came to a rest. So by applying a force, rest से motion, motion से rest, दोनों क्या हो सकता है, possible है, ठीक है. The next thing is what, the second thing. Now it can change what, size and a shape of the what, a body. Size and shape of a non-rigid body. First of all, what we'll do, we'll study what is rigid and non-rigid body. उसके बाद जो second effect है, ठीक है, वो हम लोग study करेंगे. So we are done with the first, कि because of the force applied, body is what, if it is in rest, it will come to a motion. If a body is in motion, it will come to what, a rest. So now we are starting with the second point. ठीक है, before starting a second point, we'll study what, a rigid and non rigid body. ना usually ये मेरा experience है कि मैं अगर students को पूछता हूँ कि tell me what is rigid body, so they stand up and tell me, sir, rigid body are solids. Yes, I agree, students, I agree that rigid body, most of the rigid bodies are solid, but this is not the definition. This is the example which you guys are giving. What is the definition? The definition says that the rigid body whose neighboring particle, ठीक है, the distance between the neighboring particle never changes. So if I draw a diagram of a box, let's say I'm drawing a diagram of a box again. So box के अंदर क्या कुछ ना कुछ particles है box के, yes or no, ठीक है. So ये particles है ना, अगर इसको मैं zoom करता हूँ, तो let's say ये एक particle है, ये दूसरा particle है, तो ये जो distance है दोनों के बीच में, ठीक है, yes or no. I'll do one thing, थोड़ा zoom और करता हूँ so that तुम लोग को दिखे, ठीक है. इसका zoom diagram यहाँ पे draw कर रहा हूँ. ये एक particle है, ये तुम लोग का दूसरा particle है, ये तुम लोग का तीसरा पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है, ठीक है. ये पार्टिकल किसका है, सॉलिड बॉडी का, ठीक है. दिस पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग पार्टिकल्स नेवर चेंजेस. हम लोग को पता है सॉलिड क्या है, सॉलिड इज अ फिक्स्ड शेप. व्हाई अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप? बिकॉज इट कैन ओनली वाइब्रेट ऑन द मीन पोजीशन. मतलब वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, समझा नहीं समझा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे करेगा, कैसे, अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट करेगा, समझा नहीं समझा. इट इज नॉट गोइंग टू मूव. दैट मींस व्हाट इज रिजिड बॉडी?
Rigid body is a body in which the neighboring particle, the distance between the neighboring particle never changes. It remains constant. मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा? Distance क्या होगा? Constant होगा. मैंने never change बोला. Change होगा. If I am let's say applying some factors, जैसे temperature apply किया तो obviously ये solid होगा, किसमें convert हो जाएगा? Liquid में. But हम लोग कोई factors apply नहीं कर रहे. ठीक है? Natural condition में ये rigid body है. अगर मैं आइस क्यूब का भी एग्जांपल करूं तो वो भी एक रिजिड बॉडी है बिकॉज उसके पार्टिकल्स क्या है द नेबरिंग पार्टिकल्स द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स नेवर चेंजेस इन व्हाट नॉट नेवर चेंजेस सॉरी आई एम यूजिंग अगेन अ नेवर चेंजेस नहीं द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट द आइस पार्टिकल ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग आइस पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट समझा वो कांस्टेंट है बट जैसे हीट सप्लाई किया तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा डिस्टेंस चेंज होगा एंड वो रिजिड बॉडी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा पॉसिबल है राइट मतलब रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है कि नेबरिंग पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट है दैट मींस अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब वो बॉडी क्या है रिजिड बॉडी व्हाट इज नॉन रिजिड बॉडी मतलब डिस्टेंस चेंज हो सकता है मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूं जैसे क्ले का एग्जांपल कंप्रेस हो सकता है स्प्रिंग का एग्जांपल कंप्रेस हो सकता है ठीक है पेपर कंप्रेस हो सकता है प्लास्टिक कंप्रेस हो सकता है रबर कंप्रेस हो सकता है यस और तो ये सब चीज कंप्रेस हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट रिजिड समझा नहीं समझा they are not rigid the distance between the neighboring particle keep on changing if we apply a external force अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो नॉन रिजिड बॉडी का ठीक है जो नेबरिंग पार्टिकल है अगर मैं लेट्स से ये बात करूं कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ये रबर है अगर मैंने यहां से क्या किया फोर्स अप्लाई किया यहां से फोर्स अप्लाई किया दोनों जगह से फोर्स अप्लाई किया तो ये कंप्रेस हो जाएगा यस और नो ये कंप्रेस अगर लेट्स से ये रबर है तो ये कंप्रेस होकर इतना छोटा हो जाएगा दैट मींस उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है पार्टिकल का डिस्टेंस द नेबरिंग पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है नेबरिंग पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है अगर नेबरिंग पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब वो क्या है नॉन रिजिड बॉडी है समझा नहीं समझा फोर्स अप्लाई किया नॉन रिजिड बॉडी हो गया क्लियरली समझ रहा है yes or no so this is what the concept is rigid and non rigid body now I am going to explain the second main effect yes or no the second main effect is what by applying a force you can change shape and size of a body shape and size of a non rigid body shape and size of non rigid body not a rigid body ka shape and size you cannot change why because they cannot be compressed कंप्रेस नहीं हो सकता फोर्स अप्लाई किया कंप्रेस मतलब उनका क्या होगा डिस्टेंस नेबरिंग पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा यस और अगर मैं बोलूं तुम लोग के पास ये डस्टर है ये रहा डस्टर मैं इसको दोनों जगह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये रहा जोर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं क्या उसका शेप और साइज चेंज हुआ ये रहा हो रहा है नहीं हो रहा है इट्स नॉट पॉसिबल यस और नो ये बोर्ड है बोर्ड के ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया बोर्ड छोटा हो जाएगा नहीं मैंने उसको खींचा बोर्ड बड़ा हो जाएगा नहीं इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ दिस इज अ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल विल बी कांस्टेंट मतलब शेप एंड साइज किसका चेंज होगा नॉन रिजिड बॉडी का ठीक है कभी चेंज होगा जब भी फोर्स अप्लाई किया ये सेकंड इफेक्ट है फर्स्ट इफेक्ट स्टेट चेंज होगा रेस्ट टू मोशन मोशन टू रेस्ट सेकंड शेप एंड साइज चेंज होगा क्या होगा शेप एंड साइज देयर विल बी अ चेंज इन व्हाट शेप एंड साइज there will be change in shape and size so whenever you apply a force let's take an example of a spring ये तुम लोग का स्प्रिंग है कैन यू सी हियर अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा मतलब उसका लेंथ पहले इतना था लेट्स से उसका लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अभी उसका लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर यस और नो दैट मींस उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ ना साइज कितना था इसका 10 सेंटीमीटर अभी क्या हो गया कम हो गया सो इट्स शेप एंड साइज चेंजेस इफ आई एम applying the external force so when you apply external force spring will change its shape and size I'll give you one more example ठीक है I'll give one more example let's say मेरे पास clay है अरे बचपन में सबने clay से खेला रहेगा राइट क्ले पता है ना क्या होता है ठीक है तो मैंने क्ले लिया मैंने क्ले के ऊपर फोर्स अप्लाई किया मैंने उसको क्या कैसे खींचा ऑब्वियसली उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है मैंने उसको प्रेशर अप्लाई किया ऐसा तो उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है मैंने रबर का एग्जांपल दिया रबर को प्रेस करूंगा कंप्रेस करूंगा उसका शेप और साइज चेंज होगा सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज शेप एंड साइज चेंजेस इफ यू अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स गेटिंग माय पॉइंट अगर तुम लोग का रबर बॉल है रबर बॉल को तुम लोग अगर कंप्रेस कर रहे हो तो उसका शेप और साइज यस टेंपरेरी बट चेंज होता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स दिस इज द कांसेप्ट this is the effect of what force applied that a non rigid body ये क्या है non rigid body that non rigid body changes its shape and size because of the what force applied because of the force applied so this is the second factor I'll read the second factor it can change the size and the shape of a body
can change the dimension of a body. Dimension मतलब वही हो गया shape, size, length, yes or no. So dimension change करता है when a force is applied. They are given the same example. क्या क्या example दिया है? Spring का example दिया है. They are mentioned, यहाँ पे note करके दिया हुआ है rigid and non rigid के बीच में difference. हम लोग ने already पढ़ लिया क्योंकि पहले हम लोग को पता होना चाहिए रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी है क्या, तभी तो हम लोग पता कर सकते हैं शेप और साइज किसका चेंज होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी फर्स्ट द रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी, देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट फोर्स अप्लाइड. Yes or no? You guys are clear? We have covered everything. Now the actual definition of force, which the textbook has given. मैंने जो तुम लोग को लेमैन बोला, क्या बोला? Force is nothing but a push or pull. What exactly they are saying? They are basically saying they are covering both the what effect. That if an external force or a force is applied, a force is that a physical quantity or a cause which changes, ठीक है, और tend to change, मतलब try करेगा या फिर change करेगा, ठीक है, either the size or the shape of the object or the state of rest or a state of motion. मतलब वो चार चीज करेगा. क्या करेगा? If a force is applied, the force is a physical cause, ठीक है, because of that a body will change its shape, its size, its rest of motion, its state of motion and its state of what rest. चार चीज चेंज होगा, चार इफेक्ट होगा. ऑब्वियसली दोनों को कंबाइन किया हुआ है और दो बना दिया हुआ है, ठीक है. रेस्ट एंड मोशन क्या ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, इसलिए एक ही हो गया साथ में, समझा. सो व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अ फिजिकल कॉज ऑफ व्हाट, when force is a physical cause, when applied on the body it changes its shape, size, it changes its what state of rest and state of motion. This is known as a force. ये actual definition of force है according to the textbook. Yes or no? So this is what we have done already. Yes. Great. Now we are going to study the types of forces. ठीक है. What are the types of forces we have? What are the types of forces we have? Okay. Great. So what are the types of forces we have? We have two types of forces. The first type of forces is known as what? Contact forces, and the second type of forces known as what? Basically your non-contact forces. Contact and non-contact. Contact and non-contact forces. ठीक है. Contact and non-contact forces. So there are how many? अगर मैं force लिखूं, so force is classified into what? Two types of force. Sorry. So force is classified into two types. One is your contact force, other is non-contact force. So the question will be, sir, contact force होता क्या है? Contact force is nothing but when a body is in contact. ठीक है, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और फोर्स अप्लाइड हो रहा है. ठीक है, मैं सिंपल एक फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, विच इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कभी जनरेट होता है? मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये बॉक्स है, बॉक्स ये डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. आई विल डू वन थिंग, आई विल यूज अनदर मार्कर, आई टेक द मार्कर फ्रॉम देयर. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स. ये रहा तुम लोग का, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कैसे होता है? ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है बिकॉज जब तुम्हारा जो एक्चुअल बॉडी, ये बॉक्स है, बॉक्स इज इन कांटेक्ट विद व्हाट? योर सरफेस, नीचे का सरफेस. ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जांपल दिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स का. ये कांटेक्ट है, जब बॉडी दो कांटेक्ट पे आएगा तभी फ्रिक्शन फोर्स होगा. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. अभी कैसे होता है ना, विंटर सीजन में ठंडी बहुत होता है, तुम लोग क्या करते हो? दो पाम तुम लोग इसको रब करते हो, यू रब दैट पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है. This heat is because of the what? Friction force only. That means when two hands, ठीक है, और palms are in contact with each other, then only friction force is what generated. That means this is your contact force. When two body are in contact, then only the force is what? Created or generated. Yes or no? So a frictional force is a contact force. A frictional force is what? A contact force. रब करो, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा. सो कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्स्ट टाइप कौन सा है? फोर्स के दो टाइप है, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर फर्स्ट टाइप कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देयर विल बी व्हाट? अ फ्रिक्शनल फोर्स. यस और नो? सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. वेरी गुड. ठीक है, यस. Then the next type of reaction is your normal reaction force. What is normal reaction force? So when a body is placed on the surface, the body exerts a force downwards. Okay.
अभी कैसे है ना, आई गिव यू अ सिंपल हिंट। ये जो हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ने वाले वो एक्चुअली न्यूटन का काइंड ऑफ थर्ड लॉ भी है, ठीक है, उससे कनेक्टेड है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। वापस क्या करूँगा, मैं वही करूँगा। यहाँ पे मेरा टेबल है, ये तुम लोग का टेबल है बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुक्स रखा हुआ है, ये क्या मेरा बुक है। अब ये बुक यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम लोग को पता है ना बुक क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, उसका वेट विल एक्ट डाउनवर्ड्स। यस और नो, हम लोग ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा फ्री फॉल में कि बॉडी अगर नीचे आ रहा है, यस और नो। सो ये बुक है वो क्या करेगा, नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा है, समझा, ठीक है। वैसे ये टेबल भी क्या करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये रहा, ऐसे अप्लाई करेगा, ठीक है। सो ये क्या कौन अप्लाई कर रहा है, ये टेबल अप्लाई कर रहा है, ये कौन अप्लाई कर रहा है, बुक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो डाउनवर्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द बुक्स, ठीक है। I'll give you a simple example, right? Let's say I'm standing right now. Yes, I'm standing. Not assumption नहीं, मैं खड़ा ही हूँ, ठीक है। Standing. I'm standing on a floor. Why I'm able to stand on a particular floor? Because whatever force I'm applying, मतलब मेरा जो body नीचे weight apply कर रहा है, जो force apply कर रहा है, उतना ही exactly equal amount of force क्या कर रहा है, जो नीचे का जो फ्लोर है वो भी मेरे पे अप्लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई आई कैन एबल टू व्हाट स्टैंड, आई कैन एबल टू व्हाट वॉक। यस और नो, यू गाइस आर सिटिंग राइट नाउ समवेयर, yes or no, somewhere on the sofa, on the chair, or whatever it is, couch or anywhere. Why are you able to sit there? Because that chair, couch, sofa, whatever is applying equal amount of force which you are also applying downwards. मतलब तुम्हारा जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, जैसे बुक का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ वेट अपवर्ड्स भी अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है अपवर्ड्स, who is applying the upward force, the table. So this is your what basically normal reaction force, ठीक है। कि every action क्या इधर एक्शन है कि बुक क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन आ रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझा। तुम्हारा बॉडी डाउनवर्ड्स अप्लाई कर रहा है, समझा, यस और नो। तो अगर वो डाउनवर्ड्स अप्लाई कर रहा है तो वो एक्शन हो गया, उसके ऊपर से वापस उसको रिएक्शन भी मिलता है, एंड एक्शन एंड रिएक्शन दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट्स व्हाई यू कैन एबल टू व्हाट स्टैंड, you can sit on a chair, you can walk on the what road, you can walk on the floor. But if I give you an example, can you guys walk on the water? No, you cannot walk on the water. You are not God, you are not an Aquaman, ठीक है। DC Marvel तो जाने तो DC में Aquaman करके मूवी था, राइट। Aquaman कैसे पानी पे चल रहा था, यस। वो रियलिटी नहीं, वो सच नहीं है, वो ऑब्वियसली क्या है, वो ग्राफिक्स है, उन्होंने डेवलप किया हुआ है। Nobody can walk on the water. The reason is that कि तुम्हारा जो बॉडी वेट है, ठीक है, जो तुम लोग वाटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर अपवर्ड्स अप्लाई नहीं कर पा रहा। देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज नॉर्मल रिएक्शन बट नॉट इनफ। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वॉक ऑन द वाटर, समझा। जैसे ये टेबल क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, बुक क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड्स। बट वही अगर यहाँ पे वाटर रहेगा तो ये बुक क्या हो जाएगा, नीचे सिंक हो जाएगा, बिकॉज द वाटर इज नॉट अप्लाइंग द इनफ normal reaction, yes or no. That's why we are not able to walk on the water. So I hope you guys are clear with the normal reaction, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड कोई भी बॉडी डाउनवर्ड फोर्स ही अप्लाई करता है, बिकॉज उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होता है। हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी एंड प्लस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, हम लोग को पता है। तो हर एक बॉडी का जो फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। फोर्स बोल लो, वेट बोल लो, एक ही चीज हो गया, क्लियर है। सो उसके ऑपोजिट जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो होगा तुम लोग का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दे आर गिवन वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, क्लियर है। नाउ द थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगेन अ कांटेक्ट। द मेन पॉइंट इज कि दोनों के बीच में कांटेक्ट है, बुक एंड टेबल के बीच में, समझा, मेरे और फ्लोर के बीच में, यस और नो, तुम्हारे और चेयर के बीच में देयर इज अ कांटेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स, clear, very good. Next type of reaction is a tension reaction, okay. Now what is a tension reaction? They are given what few of the examples. मैं अपना example दूंगा so that I can explain in a better way, ठीक है। now कैसे होता है ना, अगर मैं बोलूँ, तुम लोग ने गिटार्स देखे, ठीक है, गिटार में देखा एक स्ट्रिंग होता है, 6 स्ट्रिंग होते हैं, उसको एक पॉइंट से यहाँ पे अटैच कर लिया, यहाँ से क्या अटैच कर, एकदम टाइट बांध दिया, तो वो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या होता है, तुम लोग का कौन सा रिएक्शन होता है, टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन मतलब जो तुम्हारे नॉर्मल वर्ड्स में होता है, मुझे आज एग्जाम बहुत टेंशन आ रहा है, वो टेंशन नहीं। कैसे घर पे एग्जांपल कर सकते हो, एक थ्रेड लो, ठीक है, एक थ्रेड को एक एंड से दूसरे एंड पे क्या कर दो, एकदम टाइट टाई कर दो, ठीक है, एंड उसको वाइब्रेट करना चालू करो, ठीक है।
एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि वो जो वाइब्रेट हो रहा है उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। द रीजन इज दैट उसके अंदर टेंशन क्रिएट हुआ है, टेंशन क्रिएट हुआ है। अगर मैं एक स्ट्रिंग को जो बहुत एक थ्रेड है, बहुत पतला थ्रेड है, ठीक है, बहुत थिन, मैं उसको यहाँ से खींच रहा हूँ, सामने से और कोई पर्सन खींच रहा है, मैं खींच रहा हूँ, वो भी खींच रहा है, तो थ्रेड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, समझा। आई एम अप्लाइंग फोर्स, the other person is also applying a force, but we both are applying a force in the opposite direction. उसकी वजह से तुम्हारा जो थ्रेड होगा वो बीच में से कट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। सो जो ये ब्रेक हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स, ठीक है, जो डेवलप होता है एक स्ट्रिंग के अंदर। सो हर एक स्ट्रिंग के अंदर क्या क्रिएट होता है, टेंशन फोर्स, यस और नो। सो दिस इज अगेन अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सो अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं, लेट्स से यहाँ पे तुम लोग को, अरे ये रब कर देता हूँ, इसका तो जरूरत नहीं, अभी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो फिर लेट्स से ड्रॉ अ डायग्राम, ये तुम लोग का एक क्या फिक्स रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, थ्रेड लिया और थ्रेड के यहाँ पे मैंने एक, ठीक है, 10 kg का बॉक्स को अटैच कर दिया, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, क्या फोर्स क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वेट है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। वेट कहाँ पे एक्ट होता है, डाउनवर्ड्स, ये रहा डाउनवर्ड्स वेट एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही चीज हो गया। सो ऑब्वियसली अपवर्ड्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्ट होगा, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं टेंशन, टेंशन फोर्स, यस और नो। सो अगेन जैसे हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये भी टेंशन रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल रिएक्शन बाकी सब बॉडीज में होता है, टेंशन रिएक्शन स्ट्रिंग्स में होते हैं। तो दे बोथ आर सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज दैट कि टेंशन फोर्स जो होता है वो स्ट्रिंग्स में डेवलप होता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग या थ्रेड जो भी बोल रहे हो तुम लोग, वो एक ही चीज हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग और थ्रेड में। तो अगर मैं 10 kg की जगह पे मैं वेट क्या करूंगा, धीरे धीरे इंक्रीज करूँ, 10 की जगह पे लेट्स से मैंने 20 कर दिया, तो स्ट्रिंग के यहाँ पे टेंशन और ज्यादा क्रिएट होगा। 20 की जगह पे मैंने 30 कर दिया, तो ये भी क्या करेगा, टेंशन 30 कर देगा। अभी कैसे होगा ना, मैंने अगर यहाँ पे 35 कर दिया, तो ये जो स्ट्रिंग है बीच में से टूट जाएगा, देखा यहाँ से टूट गया, क्यों, बिकॉज नाउ द स्ट्रिंग कैन नॉट अप्लाई टेंशन फोर्स इक्वल टू व्हाट, 35 kg और मे बी 35 न्यूटन, ओके माय बैड, न्यूटन, बिकॉज फोर्स अप्लाई हो रहा है, चलो ठीक है, न्यूटन, 35 न्यूटन, समझा। सो यहाँ पे वो टेंशन फोर्स उतना अप्लाई नहीं कर पाएगा, सो दैट स्ट्रिंग विल ब्रेक, समझा, यस और नो, दैट स्ट्रिंग विल ब्रेक एंड ये बॉक्स नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। सो हर एक टेंशन, हर एक स्ट्रिंग का भी एक लिमिट होता है कि उतना अमाउंट ऑफ वो टेंशन अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। जितना थिकनेस ज्यादा, जैसे अगर तुम लोग मोटा सा रबर रहते हो, ठीक है, रबर बैंड, ठीक है, जो गर्ल्स और लड़की लोग सर में बांधते हैं रबर बैंड्स, ठीक है, एकदम थिक वाला लोगे तो उसको ज्यादा खींच पाओगे, एकदम थिन वाला लोगे थोड़ा खींचा टूट जाता है। तो हर एक स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स होता है, लिमिट होता है, जहां तक वो क्या कर सकता है, टेंशन को हैंडल कर सकता है। जैसे हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जहां तक टेंशन हैंडल कर सकते हैं। ज्यादा टेंशन है हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ जाने, जो होगा होगा, अपन देख लेंगे एग्जाम में क्या होगा। हम लोग का ऐसा एटीट्यूड है, राइट, समझा। वैसे इसका भी एटीट्यूड है कि भाई मैं इतना ही टेंशन ले पाऊंगा, उसके बाद आया तो आई विल ब्रेक, समझा, मैं स्ट्रिंग को ब्रेक कर दूंगा। सो दिस इज अ टेंशन फॉर अगेन अ कॉन्टैक्ट, बिकॉज ये स्ट्रिंग और ये जो बॉक्स है उसके बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हिच फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड। आई होप आई गाइस आर क्लियर विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इज व्हाट, टेंशन हो गया। Okay, so now there are I guess 3 types of contact forces remaining. After that I will wind up the video, okay, and non-contact force next video में I'll explain. Next two are what, force exerted by the spring and force exerted by during the collision. So this is also a contact force. अगर if I explain कि कैसे contact force हो गया, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे again क्या है, एक फिक्स रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, ऐसा अटैच किया हुआ, ये रहा, ये तुम लोग का स्प्रिंग है, ठीक है। ये तुम लोग का बाय द वे कौन सा टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग को मैंने क्या किया, मैंने उसको क्या किया, फोर्स अप्लाई करके ऐसे बाउंड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, यस और नो। अब ये शेप और साइज चेंज हो गया, जैसे स्प्रिंग को छोड़ दूंगा वापस से क्या होगा, क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एक्सर्ट होगा। तो दिस इज व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फोर्स स्टोर हो रहा है। जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल, टॉय है, राइट, टॉय के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, चाबी से तुम लोगों को घुमाते हो, अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग वाउंड होते रहता है।
ठीक है, मैं जितना ज्यादा चाबी दूंगा उतना ज्यादा वो टॉय घूमेगा। मैंने एक ही चाबी दिया, टॉय थोड़ा जाके रुक जाएगा, वो टॉय कार टॉय जो भी है, ठीक है। जितना ज्यादा मैं क्या करूंगा, कीज से चाबी घुमाऊंगा, जितना मैं उसको वाउंड करूंगा, किसको, स्प्रिंग को, उतना तुम लोग का क्या होगा, उतना ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, उतना ज्यादा वो ज्यादा एक्सर्ट करेगा फोर्स। सो डिपेंड करता है तुम लोग कितना फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो और कितना स्प्रिंग का शेप और साइज चेंज करते हो और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर फोर्स क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। बेसिकली फोर्स अप्लाई करोगे तो एनर्जी अंदर स्टोर हो रहा है। वही एनर्जी जब मैं क्या करूंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दिया, निकाल दिया, तो ये स्प्रिंग वापस क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। यस और नो, यस और नो। सो दिस इज व्हाट फोर्स अप्लाइड बाय द व्हाट, स्ट्रिंग। यस और फोर्स क्या बोला यहां पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, समझा। कब एक्सर्ट कर पा रहा है, जब मैं उसको कंप्रेस करता हूं, जब उसका मैं शेप और साइज चेंज करता हूं। नॉट ओनली कंप्रेस, मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा, मैं ऐसे इसको पुल कर रहा हूं, पुल, और छोड़ दिया तो वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यस और नो। घर पे अगर स्प्रिंग होगा, उसको ऐसे करो और उसको टेबल पे ऐसे छोड़ दो, वो जंप करेगा, दैट मींस वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। नाउ अगेन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देयर इज अ कांटेक्ट, राइट, कांटेक्ट बिटवीन अ फोर्स एक्सर्टेड एंड ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाट कांटेक्ट बिटवीन बोथ द व्हाट बॉडीज। यस और नो, it is a contact between both the bodies. So consider a spring with its one end kept as fixed, ये end क्या fixed end है, ठीक है। If the other end is either stretched or compressed, ठीक है, yes or no, F is applied. So उस जो F अप्लाई किया है यहाँ पे, जो F अप्लाई किया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट अगेन बिकॉज ऑफ द वर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब ये स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तभी बॉडी कॉन्टैक्ट में आता है ना, मैं हाथ लगा रहा हूँ स्प्रिंग को, दैट मींस देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Yes or no? Because of this contact force, a spring is exerting a spring force in opposite direction. समझा? Yes or no? ठीक है? So this is a spring in a normal condition. ये normal condition में spring है। ये spring जब भी मैंने क्या किया, force exert किया हुआ already। अभी जैसे अभी इसका थर्ड डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वापस ये क्या करेगा, ऐसे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और ऑपोजिट ऐसे डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? बिकॉज उसको ओरिजिनल शेप और साइज में आना है, उसको वापस ये साइज में आना है, तो ये क्या करेगा, फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तभी यहाँ पे आएगा, समझा। तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग के ऊपर अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। बट अगेन देयर इज अ व्हाट, फिजिकल कांटेक्ट, दैट्स व्हाई force exerted by a spring is also known as what, a contact force. It is also known as what, a contact force. I hope you guys are clear with this fourth type of contact force. Now we are going to study about the fifth type of the what, contact force, which is the force because of the collision. ठीक है, force during the collision. अभी collision मतलब accident समझ लो, collision is a physics का word, ठीक है, collide, collusion, yes or no, accident समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, क्या होगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ ने, हाँ चलो ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दे आर गिवन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अपन ऑपोजिट लेते हैं, ठीक है। ये सामने से ये लेट्स से तुम लोग बोलोगे ये इसका ये बड़ा बॉडी है, छोटा बॉडी है, दोनों कुछ स्पीड से क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। व्हेन दे कोलाइड, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो दोनों पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऑब्वियसली ये छोटा बॉडी है तो ये जो होगा वो दूर तक चला जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, सामने एक ट्रक है एंड बाइक है, ट्रक एंड बाइक एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ऑब्वियसली बाइक है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा बिकॉज जो ट्रक है उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, उसका साइज ज्यादा है। जब ये ट्रक यहाँ से आ रहा है और बाइक को जब हिट कर रहा है तो कल्यूजन हो रहा है, बिकॉज ऑफ कल्यूजन ये जो बाइक है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ट्रक पे भी फोर्स एक्सर्ट होगा बट इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा क्योंकि वो छोटा सा बाइक है, समझा। सामने अगर दोनों सामने से ट्रक आ रहे हैं इक्वल साइज के तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, समझा नहीं समझा। कोलिजन होगा और एक्सीडेंट होगा। हियर अगेन जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट पे कांटेक्ट, ये रहा, ये ऐसा ग्रुप ऐसा ट्रैवल करके ये कांटेक्ट में आ दोनों बॉडी, व्हेन दिस टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट तभी तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ कोलिजन, ठीक है, वहां पे कोलिजन हो रहा है और फोर्स क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। तो जब फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडी के बीच में तभी क्या हो रहा है, कोलिजन क्रिएट हो रहा है एंड तभी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन बोथ द बॉडीज। फोर्स दोनों बॉडी पे एक्सर्ट होता है, ओनली डिफरेंस इज दैट ये बॉडी क्या है, वेट कम है, साइज छोटा है, इसलिए इस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा और ये दूर तक जाएगा।
यस और नो? जैसे अगर बॉल और बैट का बोलो, बैट बहुत बड़ा है, बहुत हेवी होता है, तुम लोग बॉल फेंकते हो तो मैं बैट से थोड़ा सा ऐसा सिर्फ प्लेट भी करता हूँ, सिर्फ उसको टच करता हूँ तो बॉल दूर तक जाता है। समझा नहीं समझा? ठीक है, वही अगर मैं बड़ा सा फुटबॉल लूंगा और बैट लूंगा और वैसे ही मैं से उसको सिर्फ टच करूंगा तो फुटबॉल उतना दूर तक नहीं जाएगा, बिकॉज फुटबॉल का वेट भी ज्यादा है और उसका साइज भी ज्यादा है। यस और नो? एंड ऑफ द डे फोर्स दोनों पे एक्सर्ट हुआ, दोनों केस में बैट पे भी फोर्स एक्सर्ट हुआ, बॉल पे भी फोर्स एक्सर्ट हुआ। यस, ओनली थिंग इज बॉल का साइज छोटा है इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट बैट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। यस, वैसे ही यहाँ पे ये बी क्या करेगा, दूर तक जाएगा, बट ये ए दूर तक नहीं जाएगा, मे बी वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा, ये और दूर तक जाएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो दिस इज व्हाट अगेन अ फोर्स ऑफ कल्यूजन, व्हेन अ बॉडी इज इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जब फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, कल्यूजन हो रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स F1 हो गया, ये फोर्स F2 हो गया। ऑब्वियसली फोर्स F1 विल बी ग्रेटर देन फोर्स F2। अगर फोर्स F1 इज ग्रेटर देन F2 तो जो बॉडी B है वो क्या करेगा, ग्रेटर डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा ऑन दिस डायरेक्शन। यस और नो? समझ रहा है, नहीं समझ रहा? तो दिस इज व्हाट योर बेसिकली कल्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग कल्यूजन एंड आफ्टर कल्यूजन। समझा नहीं समझा? ठीक है, सो बॉडी ये डायरेक्शन में जाएगा, ये बॉडी ये डायरेक्शन में जाएगा आफ्टर द कल्यूजन। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक में दे आर ड्रॉन द डायग्राम, तो मैं वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आई विल बी वेरी क्लियर। ये क्या है, बिफोर कल्यूजन है, बॉडी ए एंड बॉडी बी दोनों ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। ठीक है, अभी ये क्या है, ड्यूरिंग कल्यूजन आया फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एफ बी। ये क्या तुम लोग का ए है, ये बी है। अभी ये हो गया बिफोर, ये हो गया ड्यूरिंग कल्यूजन, और इसके बाद होगा आफ्टर कल्यूजन। आफ्टर कल्यूजन कैसे होगा, ये जो बड़ा बॉडी है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये छोटा बॉडी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पहले दोनों ये डायरेक्शन में आ रहे थे, ड्यूरिंग कल्यूजन दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट हुआ यहाँ पे, और अभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट हो गए। ये भी थोड़ा पीछे जाएगा, बोलोगे सर ये कैसे जाएगा ऑपोजिट, ये भी थोड़ा पीछे जाएगा और ये भी पीछे जाएगा। समझा नहीं समझा? यस और नो? ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट होंगे, क्या होंगे, ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट होंगे। तो ये ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट ये थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यू वोंट बी एबल टू सी आल्सो। Getting my point? Yes or no? So this is what basically again a contact force. Which force? A collision force. When a body, okay, collide with each other, there is a force which is exerted. This force is known as what? Force of collision. Known as what? Force of collision. When a body collides with each other. So these are the 5 types of what? Contact forces. Which 5 type of contact forces? Let's go through. Let's go through again. First is frictional force. Second is your normal reaction force. Third is your force exerted by the spring. Yes or no? Clear है? फिर the fourth is force applied by the string, the tension force, and the fifth, which is force of collision. This all are contact forces. Why they are all are contact forces? Because दो बॉडी के बीच में physical contact हो रहा है. They are in a physical contact with each other. As they are in physical contact with each other, एक दूसरे के ऊपर force exert कर रहा है. समझा? तो this is a contact force. ठीक है, आई एम एंडिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड विल स्टार्ट विद द बी पार्ट आल्सो, बिकॉज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत कम है. ठीक है, हार्डली 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है. सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी भी स्टार्ट कर देंगे. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, एनी डाउट्स यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.